students, welcome back to this class. Children, as you know, we are studying about chapter number 10, that is Essential of Life, Air and Water. Today we are continuing this chapter, but before continuing this chapter, let's revise the previous things. We have learned about the atmosphere. What do you mean by atmosphere? The earth is surrounded by the blanket of air. हमारे earth पूरे surrounded किससे? air से है और this is called atmosphere. There are 5 layers of atmosphere on earth. What are these? First one is troposphere, जहाँ पे क्लाइमेटिकल चेंजेस होते हैं. सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पर सारे जेट्स और एयरप्लेन्स वहाँ पे फ्लाई करते हैं. एंड द थर्ड वन इज मीसोस्फेयर. मीसोस्फेयर हेल्प्स टू, किसमें हेल्प करती है? फॉर बर्निंग द मेट्रॉइड्स एंड द स्मॉल रॉक पार्टिकल्स. एंड द फोर्थ वन इज द थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर क्या आता है? स्पेस शटल्स जितने भी होते हैं उनको करने में. एंड द एक्सोस्फेयर इज द सबसे लास्ट, मतलब कि टॉप मोस्ट लेयर होती है एक्सोस्फेयर. इट इज कनेक्टेड विद द स्पेस, जो कि स्पेस से टच में होती है और वहाँ पर लेस एयर होती है. जितना जब हाइट पे जाएंगे वहाँ पे एयर कम होगी, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ वो सारी एयर को अपने ट्रोपोस्फेयर पे रखता है. और जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं द लेवल ऑफ एयर इज डिक्रीज. एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. So, what are the composition of air on earth? That is 78% of nitrogen available there, but we are taking the nitrogen indirectly by plants, okay, by animals. Not directly we are taking nitrogen. And the second one is the oxygen. That is 21% of the oxygen. We breathe oxygen. It is most usable gas, जो कि directly हम लोग उसको use करते हैं. And the third one is the other gases. Other gases we can say it is argon, neon, carbon dioxide, water vapors, and we can also include the dust particles, smoke and other gases. It is only of 1%. So today we are studying about that is the properties of air. So what are properties? मतलब गुण क्या, air में क्या क्या चीजें हैं कि आपको, this is the air. Air can occupy the space. Air occupy भी करती है space. If they are brush, आपको air आप ना उसको देख सकते हैं ना स्मेल कर सकते हैं, but you can feel the air. जब wind blow करती है इसको feel करते हैं. Okay, now this winter is here. आपको क्या लगता है? The air is cold. क्या है? air cool है. तो हम winter है तो air cool है, मतलब ठंड लग रही है. So the properties of air is air occupies space and air has weight. Air का weight भी होता है. We will see in the book. Okay, कैसे इसमें explain किया गया एक्टिविटी में. Then air can be compressed. Air को हम compress भी कर सकते हैं, मतलब दबा के बंद भी कर सकते, दबा सकते हैं air को. Like अभी मैंने इसको किया, air को कर सकते हैं. Now next is expand on heating. जैसे हमने solid liquid gases में contraction and क्या पढ़ा था? expansion पढ़ा था. उसमें क्या, when we cool तो क्या होता है? वो contract होता है, और when we heat anything it's expand. So same, air can expand on heating or contract on cooling. The fifth one is the air exerts pressure. Air से pressure भी create होता है. Like हम balloon blow करते हैं तो क्या उसके अंदर pressure डल रहा है और वो balloon हम blow करते ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा pressure से हम और air blow करते हैं तो क्या होता है? balloon burst हो जाता है. That is air exert pressure. So children, this is our book. We will discuss about the properties of air. First one is the air occupies space. How is possible air occupies a space? So here is an activity. Take an empty glass and bucket filled with 3/4 with water. You can see the आपने एक empty glass लिया है और bucket है जो कि full of water है, उसमें fill कर दिया है. Invert the glass. Invert मतलब उल्टा glass उसमें डाला है and quickly put into the bucket on water. Keep the glass straight and inverted. आपको ग्लास को उल्टा ही रखना है और बकेट में स्ट्रेट रखना है. देन द वाटर डज नॉट एंटर द इन्वर्टेड ग्लास. और वाटर आपको देखोगे कि जो वाटर उसको अलाउ ही नहीं कर रहा है ग्लास को कि वो स्ट्रेट रहे, इन्वर्टेड रहे. देन व्हाई? द एयर प्रेजेंट इन द एम्प्टी ग्लास प्रिवेंट्स द ग्लास फ्रॉम एंटरिंग इट. सो जो एयर है उसके अंदर वो बचा रही है, जो क्योंकि वो ग्लास क्या फुल ऑफ एयर होगी और वो उस वाटर को अलाउ नहीं कर रही अंदर आने के लिए. So now the slightly tilt the glass. अगर हमने थोड़ा सा tilt किया ग्लास को, so what you have to find? The air from the glass escape. उसमें जो air थी वो escape हो जाती है और water उसके अंदर starts entering the water. Water enter. This shows the glass which appears to be empty to you is actually filled with air. जो आप
एम्प्टी दिख रही थी वो एम्प्टी नहीं थी, इट इज एक्चुअली फिल्ड विद एयर से फिल्ड थी। So here's the MCQs. The blanket of air around the earth. जो blanket of air around the earth उसे क्या बोलते हैं? We call that atmosphere. The atmosphere contain maximum amount of air. जो एयर में कंपोजिशन है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या होता है एयर में? दैट इज नाइट्रोजन. इट इज ऑफ 78%. Which of the following gases is used in fire extinction? फायर एक्सटिंक्शन में कौन सी गैस यूज करती है? ऑक्सीजन गैस हमें बर्निंग में यूज होती है. दैट मीन्स इट इज नॉट यूज फॉर बर्निंग. एक्सटिंक्शन में यूज नहीं हो सकती. तो कार्बन डाइऑक्साइड वी यूज फॉर एक्सटिंक्शन द फायर. नेक्स्ट इज एयर हैज वेट. एयर का वेट. अगर आपने एम्प्टी ग्लास दिया है तो जो ग्लास का वेट है आप सोचोगे यही वेट है, बट एयर इज टेलिंग दैट कि एयर का वेट होता है. हाउ इज पॉसिबल? सो वी कैन हियर इज एन एक्टिविटी दैट शोज दैट एयर हैज वेट. एयर का वेट होता है. इन्फ्लेट टू बैलून्स ऑफ सेम साइज. आपको क्या करना है? इन्फ्लेट मीन्स कि टू सेम साइज में टू बलून्स को ब्लो करना है और एक स्टिक पे उसको हैंग कर देना है. Then tie a piece of string in the middle of the stick. Tie both the balloons to the end of the stick. Balance the stick by shifting the position of the balloons. When the stick is balanced, the weight on the both ends of the stick is equal. जब स्टिक को स्ट्रेट हो जाए दैट मीन्स उनका दोनों का वेट क्या है? इक्वल है. दोनों को ब्लो किया हमने, इन्फ्लेट किया और स्टिक पे हैंग कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, थ्रेड की हेल्प से, और उनको इक्वल बैलेंस दिखा रहा है कि उनका दोनों का वेट इक्वल है. आफ्टर सम टाइम टेक अ नीडल और पेन एंड प्रिक वन ऑफ द बलून्स. मतलब कि एक बलून में छेद कर दो, प्रिक कर दो, पिंच कर दो. एंड एयर एस्केप फ्रॉम द बलून. और उसके अंदर की जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है बलून के अंदर की. दिस स्टिक टिल्ट टुवर्ड्स द साइड ऑफ द एयर फिल्ड बलून. और वो स्टिक क्या हो जाती है? जो इनफ्लेटेड बलून है जिसमें एयर फिल्ड है उसकी तरफ टिल्ट हो जाती है, वो डाउन हो जाता है. दिस हैपन बिकॉज ऑफ इनफ्लेटेड बलून हैज एयर इन इट. ये क्या बताता है? जो इनफ्लेटेड बलून है उसमें एयर थी. एंड वेयर एज द पंक्चर्ड बलून हैज नथिंग. और जो पंक्चर्ड हो चुका है जिसको हमने प्रिक करके किया था, एयर निकाली उसमें से, उसके अंदर कुछ भी नहीं है. दिस शोज द एयर हैज वेट. इससे क्या बताता है कि एयर का वेट होता है. दिस यू कैन सी हियर, दीज आर दोनों इक्वल है. देन इसको प्रिक किया, फिर ये पंक्चर्ड बलून का वेट नहीं और ये डाउन पे आ गया. दैट मीन्स द इन्फ्लेटेड बलून इज हैवी. ऑल्सो एयर हैज वेट. नेक्स्ट इज एयर कैन बी कंप्रेस्ड. एयर को कंप्रेस भी कर सकते हैं. सिंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इन एयर आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एयर कैन बी कंप्रेस्ड एंड पुश्ड इनटू स्मॉल स्पेसेस. आपको पता है कि पूरे सराउंडिंग में एयर है और उसको और उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं. गैस की क्या प्रॉपर्टी है? मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, वेरी लूजली पैक्ड. तो उनको इकट्ठा करना पॉसिबल है. उनको इकट्ठा कैसे पॉसिबल करते हैं? हम किसी कंटेनर में उसको पैक कर देते हैं, तो इससे हम उसको एयर को कंप्रेस करते हैं. इसके थ्रू ही हम एयर को क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑन कूलिंग. मीन्स कि जब हम किसी भी एयर को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड, फैल जाती है. लाइक हम वाटर को बॉईल करते हैं, वाटर वेपर आती है. वाटर वेपर क्या होती है? एलिमिनेट हो जाती है ऊपर और कहीं पे भी उसके मॉलिक्यूल्स स्प्रेड हो जाते हैं. व्हेन एयर इज वार्म. जब एयर वार्म होती है, इट एक्सपेंड एंड टेक अप मोर स्पेस. जब हमारा सराउंडिंग बहुत वार्म होती है तो वो क्या होता है? सारी जगह फैल जाती है बहुत ईजीली और उसको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है. ऑन द अदर हैंड व्हेन एयर कूल. जब और उसी अदर थिंग में जब एयर ठंडी होती है तो इट श्रिंक्स एंड ऑक्यूपाई लेस स्पेस. और वो बहुत कम स्पेस देती है. मीन्स कि जब हम एयर, जहाँ पे हॉट एरिया है वहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा गर्म होती है और जहाँ पे कूल एरिया है वहाँ पे ठंडी होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. ये एयर प्रेशर भी देती है. एयर क्या करती है? प्रेशर भी क्रिएट करती है. You have learned that air occupies space and weight. आपने पढ़ा है कि एयर क्या करती है? वेट भी लेती है और एयर भी और स्पेस भी लेती है. But anything that has weight exerts, so air also exert pressure. जो भी चीज वेट है, जिस चीज का भी वेट है वो क्या करता है? प्रेशर जरूर क्रिएट करता है, एक्सर्ट करता है. तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर. जो प्रेशर एयर के थ्रू एक्सर्ट किया जाता है, लगाया जाता है, उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो किस में मेजर किया जाता है? बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट में मेजर किया जाता है. यू कैन सी द बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट इज हियर.
इट इज कॉल्ड, जहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं. सो हियर इज एन एक्टिविटी टू एक्सप्लेन दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. So take a glass tumbler. Here is taking a glass tumbler filled with water up to its brim. Means कि पूरा fill कर दिया end तक. Then what they do? Place a piece of cardboard on the mouth of the glass. आप इसको mouth के ऊपर रख दोगे glass के उस piece of wood को. Then hold the cardboard tightly with one hand and turn the glass upside very quickly. और आप क्या करोगे, उसको बहुत hold tight करके और उसको quickly इसको टर्न कर दोगे ग्लास को, स्ट्रेट कर, उल्टा कर दिया हमने. एंड रिमूव योर हैंड जेंटली फ्रॉम द कार्डबोर्ड, और अपना हैंड को उससे यहाँ पे हटा दिया है. एंड यू सी दैट द कार्डबोर्ड स्टेज इन दिस प्लेस, द वाटर आल्सो डज नॉट फॉल एट ऑल. अब आपने देखोगे कि आप जैसे ही आपने हाथ रिमूव कर दिया, कार्डबोर्ड वहीं पर है और वो कार्डबोर्ड नहीं गिर रहा है नीचे और ना पानी गिर रहा है. तो व्हाट कीप्स द कार्डबोर्ड पीस स्टक टू द ग्लास? ऐसी कौन सी चीज है जो कि कार्डबोर्ड को स्टक करके रखा है उसने? इट इज द प्रेशर ऑफ एयर. उस एयर के अंदर प्रेशर है जो कि उस कार्डबोर्ड को स्टिक करके रखा है. सो द एयर आउटसाइड द कार्डबोर्ड पीस exert pressure on the cardboard equal in the direction and prevents it from falling. तो मीन्स जो प्रेशर है वो ऊपर से भी लग रहा है और अंदर से भी लग रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, वो बैलेंस बनाओ और वो उस पीस ऑफ वुड को गिरने से बचा रहा है. दिस शोज दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, और ये क्या बताता है, एयर प्रेशर क्रिएट करता है. ओके, नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एयर प्रेशर? एयर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर. जिस एयर से जो एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे एयर प्रेशर कहते हैं. नाउ एयर प्रेशर हेल्प्स इन एवरीडे लाइफ, लाइक इन फिलिंग अप सिरिंज, फाउंटेन पेन, ड्रिंकिंग विथ स्ट्रॉ एंड यूजिंग ड्रॉपर. आप देखोगे ड्रॉपर्स का सिंगल ड्रॉप करता है, वो क्या है, आप एकदम से उसको पिंच करते हो, पूरा तो नहीं आएगा, उसको धीरे धीरे कर सकते हो ना. तो ये क्या है, एयर प्रेशर होता है. उसके अंदर स्ट्रॉ से आप मिल्क पी रहे हो, जूस पी रहे हो, और सिरिंज मतलब इंजेक्शन फिल करते हैं डॉक्टर. ये क्या है, इसमें देखो इसको ले रहे हैं तो एयर आ रही है अंदर. सो ये प्रेशर क्रिएट करना है. द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द स्ट्रॉ बिकम लेस. अब जो प्रेशर है स्ट्रॉ के अंदर वो क्या होता है, बहुत कम होता है. एंड द एयर प्रेशर आउटसाइड एट द सरफेस ऑफ जूस इज मोर. तो जो सरफेस का जो एयर है, सिरिंज का जो प्रेशर है वो बहुत कम है, और जो जूस का जो प्रेशर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है. So air pressure on the surface of juice then forces the juice to move up in the straw. और वो क्या करता है, जो जूस होता है उसको प्रेशर करता है उस स्ट्रॉ के अंदर जाने के लिए जूस को. So the dropper also work in the same way, और ड्रॉपर भी उसी सेम वे में वर्क करता है. Here is the activity also shown that to observe the air pressure in a syringe. एक सिरिंज में हम देखेंगे कि कैसे एयर प्रेशर क्रिएट होता है. So take a syringe and dip it in the water. आपने एक सिरिंज लिया, इसको पानी में डिप किया. Then push the plunger in the syringe. और ये प्लंजर क्या है, जो पीछे सपोर्ट देते हैं उसको प्लंजर बोलते हैं. उसको पुश करना आपको. ओके, you see the air bubbles in the water. आप उसको पुश करोगे तो आप उसको एयर बबल्स दिखेंगे. Now pull the plunger back. अब इस प्लंजर को पीछे की तरफ खींचो. You see the syringe is filled with water. आप देखोगे सिरिंज क्या होगी, वाटर से फिल होंगे. This is because when you push the plunger forward, the air inside the syringe is removed. मीन्स कि जब आप प्लंजर को आगे की तरफ करते हो उसके अंदर की एयर होती है वो पानी में आ जाती है, जिससे वो बबल क्रिएट करती है. एंड एज द प्लंजर इज पुल्ड बैक, द एयर प्रेशर ऑन द वाटर फोर्सेज द वाटर टू राइज अप इन द सिरिंज थ्रू द नोजल. और फिर जब आप पुश बैक करते हो, जो एयर वाटर का जो प्रेशर होता है वो उसको फोर्स करता है उस सिरिंज के नोजल के अंदर के थ्रू जाकर उसको फिल करने में. सो दिस इज शो दैट एयर प्रेशर, ये क्या शो करता है, एयर प्रेशर शो करता है. So these are the properties of the air and the importance of air pressure. Read the chapter and try to do these activity at your home, because these are the very easy activities. They don't harm you. If you have any doubt, you can ask to me. And in the next video, that means after your winter break, we will discuss about the water. We have completed the air, essential of life, air. But in the next video, we will learn about the water importance. And now bye bye children, thank you, take care, and wish you a very happy new year. Bye.